first accused is Vartika, who is wife of the deceased. Vartika fell in love with her colleague Manish, who is accused number two. Jitendra is the sutradhar of this entire murder case. He contacted the contraculars. मतलब पूरा केस प्रोसिक्यूशन का मुंह पर गिर जाएगा अगर कोई चेन इवेंट्स नहीं कनेक्ट कर पाए तो, बिकॉज देर आर नो विटनेसेस ओवर हियर, देर आर नो आई विटनेसेस. भाइयों क्यों चुप हैं, वही तो समझ नहीं आ रहा है. ये क्या करके आए हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं. ये 22 आपने केवल कोर्ट में बुलाया था, कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि आ गई. अब सर ऑल डिटेल कोर्ट में क्या शकल देखने के बुलाता है? नहीं क्या था इसमें पिछली बार? Malats on the last date gave last opportunity to the state to seek instruction with respect to my query before this honorable court, Malats. Malats, my case is that this entire case is a murder case based on circumstantial evidence. There is no eyewitness in this case, Malats. Now, Malats, the role of 5 accused person is very important before I take Malats to the merits of the case, that why further investigation is necessary. Malats, in this case, there are 5 accused persons. First accused is Vartika, who is wife of the deceased. She was working at working at Amaltash Hospital at Devas. Vartika fell in love with her colleague Manish, who is accused number 2, again an employee of Amaltash Hospital. Now, this fact of extramarital love affair came to the knowledge of the deceased, who was the husband of Vartika. The deceased started questioning Vartika, and therefore Vartika and Manish hatched a conspiracy to get rid of the deceased, my lord, the husband. Now, in furtherance of this conspiracy, Vartika and Manish contacted accused number 3, Jitendra Verma, who is also an employee of the same hospital. Illicit relation between Vartika and Manish. My lords. Now, my lords, Vartika and Manish got in touch with the third accused, Jitendra Verma. तो बनाए गए सभी नहीं. My lords, all are accused, my lord. My grievance is not with respect to any accused person that has not been made. So, my lords, Jitendra also got involved in the conspiracy in this murder case, my lords. Now, Jitendra, in furtherance of this conspiracy, hired 2 contract killers, Ankit and Arjun, whose bail applications are also listed as connected matters today. On 13th of October 2021, my lords, when the deceased was coming back to his home after dropping his wife Vartika at the bus stand from where she takes the bus to Devas, the deceased was followed by Arjun and Ankit on another motorcycle. Arjun Mandloi, in furtherance of the conspiracy, threw red chili powder in the eyes of the deceased person. The deceased fell down. Arjun caught hold of the deceased, and Ankit brutally stabbed 6 knife wounds in the chest cavity and in the abdomen of the deceased, resulting into the death of the deceased at the spot itself, my lord. This is the prosecution story, my lord. Now, my lord, what happens during the investigation, the charge sheet comes to be filed, wherein call detail record. Now, my lords, the important part of this case is that there is no eyewitness over here. The entire case is based on circumstantial evidence, as I have stated, my lord. Now, my lord, the charge sheet came to be filed, wherein CDR of only Manish, Vartika's lover, was annexed. 5 mobile phones were seized from these 5 accused persons. However, CDR of only 1 accused person was brought on record. The brother of the deceased, who is the complainant, filed an application under Section 91. In furtherance of that, the learned trial court directed the prosecution agency to file the rest of the CDRs. The prosecution agency then filed CDR of 2 accused persons, Jitendra Verma and Vartika. Now, my lords, this itself shows that how in a casual manner investigation was conducted. When they had seized 5 mobile numbers, they brought on record only 1 CDR of 1 mobile number. It was only after my Section 91 that CDR of 2 more accused persons were brought on record. Now, my lords, since Jitendra is the sutradhar of this entire murder case, he contacted the contraculars, he moderated and supervised the act of murder. So Jitendra was in constant touch over mobile phone conversation with the 2 contract killers, Ankit and Arjun, my lords. So, my lords, the CDR of Jitendra is the most important one in this case.
Now, my lords, when I perused the entire CDR of Jitendra, there were found to be 4 mobile numbers which were not seized, over which 162 calls were made by the mobile number of Jitendra. 162, my lords. Now, my lords, for assistance of this honorable court, I have prepared one-page chart. This is very important for adjudication of this case. Sir, ये आपके पास मेरे पास है, आपके पास? इसको किए गए हैं। My lords, मेरे चार्ट में सीरियल नंबर 1 पर सबसे लेफ्ट साइड कॉलम में कॉल मेड बाय मैंने बनाया है। जितेंद्र के नंबर से एक अर्जुन का नंबर है जो एक्यूज्ड है 888960, उस पर 13 बार कॉल किया है 1 day before the incident. I have annexed this chart at page number 60 and 50 of my MCRC, my lords. सीरियल नंबर 2 पे my lord जितेंद्र ने अपने नंबर से एक और नंबर 9753612168 पर 8 बार फोन किया है अराउंड द टाइम ऑफ इंसिडेंट। सेम नंबर उसी का नंबर है। my lords, जिस पे कॉल गया है वो ट्रू कॉलर के ऐप के हिसाब से जितेंद्र का नाम शो कर रहा है और इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। 7:45 बजे की वारदात है, 7:45 से 7:30 के बीच में इस नंबर पे 8 बार कॉल जाते हैं बाय एक्यूज जितेंद्र। मान लो सीरियल नंबर 3, जितेंद्र अपने मोबाइल नंबर से फिर से एक मोबाइल नंबर पे कॉल करता है 99 टाइम्स माय लॉर्ड्स। ये ट्रू कॉलर ऐप में अर्जुन के नाम से नंबर रजिस्टर्ड दिखाया जा रहा है विच इज 74 ये मोबाइल ना तो सीज हुआ ना इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है माय लॉर्ड। अर्जुन इज एन एक्यूज्ड। यस माय लॉर्ड, अर्जुन इज द कॉन्ट्रैक्ट किलर माय लॉर्ड। Also been accused in this case, man. यस। सिमिलरली माय लॉर्ड जितेंद्र अर्जुन के एक और मोबाइल नंबर पर 23 बार कॉल करता है ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट एंड 1 day बिफोर द इंसिडेंट, 12 और 13 अक्टूबर को। लास्टली माय लॉर्ड जितेंद्र अंकित जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किलर है इस केस में, उस पर 19 बार फोन लगाता है 2 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक। सो माय लॉर्ड सीरियल नंबर 1 पे जो मोबाइल नंबर लिखा है ये तो रिकॉर्ड पे आ चुका है। हाउएवर माय लॉर्ड सेकेंड कॉलम में जिसमें फोन कॉल्स जा रहे हैं उसमें 4 ऐसे नंबर्स हैं जिसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हुई है और इन पे टोटल 162 टाइम्स कॉल कर रहा है जितेंद्र। माय लॉर्ड ये मेरा केस है। My humble prayer in this case is to seek a direction for further investigation with these 4 mobile numbers, my lords. My lords, पूरा केस प्रोसिक्यूशन का मुंह पर गिर जाएगा अगर कोई चेन इवेंट्स नहीं कनेक्ट कर पाए तो, because there are no witnesses over here, there are no eyewitnesses. Now, my lords, to substantiate my point with the help of case laws, I am relying on 2 judgments, one of the Honorable Supreme Court and one by this our own honorable court, my lord. My lord, the first case of the honorable Supreme Court is Anant Thanur Karmuse. My lord, इस केस में भी prayer was made in a writ petition for further and re-investigation of the FIR against a sitting minister in the state of Maharashtra. एक FIR की जाती है by the victim appellant on this case, जिसमें मिनिस्टर को छोड़ के उसके सारे गुंडों का नाम आ जाता है। He moved the court for further investigation. High Court dismissed it. However, Supreme Court directed re-investigation, my lords. My lords, I request my lord to kindly have para number 13 of this judgment. May I read, my lord? Para number 13. Yes. It is further submitted that as observed and held by this court in Dharampal versus State of Haryana, para 25, the constitutional courts are envisaged with the power to order fresh, de novo or re-investigation, and as observed and held, the commencement of a trial and examination of some witnesses cannot be an absolute impediment for exercising the said constitutional power, which is meant to ensure a fair and just investigation. Further, my lords, I draw my lords' attention to para number 37, my lord, wherein the criteria in under what circumstances further investigation can be directed have been enumerated. Para 37, my lords, in Bharti Tamang. So, my lords, Bharti Tamang has been quoted. नीचे मालॉज 41.3 पॉइंट नंबर 41.3 मैं साहब के सामने पढ़ना चाहूंगा। इफ डिफिशियंसी इन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन इज विजिबल or can be perceived by lifting the veil which try to hide the realities or covering the obvious deficiency, courts have to deal with the same with an iron hand appropriately within the framework of law. Subsequently, my lords, may kindly come to point number 41.8. In exceptional circumstances, the court, in order to prevent miscarriage of criminal justice and if considers necessary, may direct for the investigation de novo. Whereas at para number 38, the Honorable Supreme Court sums up this. I would
Now, my lords, our own High Court recently, on 22nd of August, has authored a judgment by Honorable Mr. Justice Subodh Abhyankar, wherein he has used strong words against the investigating agency for conducting investigation in a very casual manner, my lords. My lords, may kindly have para number 13, 14, and 15. Sir, yeah, copy. My lords, it's a case of robbery and murder, my lords. Yes. At para number 13, this honorable court observes that in the said case, also only because of the failure on part of the investigating officer and the forensic expert, the benefit of doubt was given to the accused and he was acquitted for a heinous crime of rape and murder. And in the present case also, as already pointed out, the investigating officer made no efforts to take out the fingerprints from the house where the murder took place. Thus, despite this court pointing it out time and again that serious lapses have been committed by the investigating officers, there is no discernible progress in the methods and approach of the investigation. And the accused persons are allowed to go scot-free, and it appears that whatever observations made by this court or the other courts in this regard are only for the satisfaction of their own conscience. It must be understood that when a criminal trial is doomed right from the beginning, only because of slipshod investigation, it is nothing but a sheer misuse of the process of the court at the cost of the public exchequer. Now, my lords, at para number 15, my lord has directed, thus in its effort to ensure that this practice of careless and sloppy investigation must stop somewhere, and the investigation is not left to the whims of an investigating officer, it is directed to the Director General of the Police, MP Bhopal, to ensure that in each district of the state, each and every investigation in serious crimes be supervised by a team comprising of 2 members, which shall be headed by a senior level police officer, not below the rank of an experienced IPS officer and other officer of the police department, not below the rank of sub-inspector of police, who may be chosen by the said IPS officer. The said serious crime investigation supervising team shall supervise the investigation, and the investigating officer shall also report and apprise the team about the progress of the investigation for its inputs to ensure that there are no lapses in the investigation, and so far and so on, my lords. So, my lords, my humble prayer before this. इसके लाइट में क्या हुआ, इस डायरेक्शन के लाइट में स्टेट मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इट इज नॉट बीन एप्लीकेबल एट द डिसीजन एट दिस केस, मतलब देयर इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू मतलब नहीं तो जनरल ऑर्डर है, बट मतलब in this case मतलब prior to investigation in this case, therefore the STSC Act also been attracted, and therefore the senior officer it is investigated due respect of this case. नहीं होता है, एक्ट वाइज नहीं होता है, मतलब होता है on the priority of this case मतलब आप 15 का बताइए ना क्या हुआ, 15 के डायरेक्शन का कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, जनरल डायरेक्शन वो फिर एक बार मेरे को क्वेरी इस हिसाब से करनी है, कितना क्वेरी लेंगे मैं इस केस के ऑन दैट मतलब आई एम प्रिपेयर ऑफ दिस केस मतलब देयरफॉर द डायरेक्शन ये जनरल मतलब द जजमेंट पास बहुत सभी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, इतना भी मतलब ऑफिसर्स को दिया गया है, ये लैप्सेज आ रहे हैं मतलब कंट्री टू आप खुद सोचिए 91 में ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कोर्ट को, वहाँ फाइल कर रहे हैं कॉल डिटेल्स सीडीआरस, उस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि 173(7) में संभवतः इनको पावर है। मतलब मैं आपको इट इज एक्सप्लेन ऑफ दिस केस मतलब therefore the different and the judgment also been produced of this honorable court, therefore not been applicable due respect of this time मतलब मे बी क्लियर डेट मतलब ये देखेंगे ना पहले इसका क्या हुआ, मतलब ये तो फिर एक बार मेरे को उनसे मतलब एज हिसाब से बात करनी पड़ेगी कि जनरल डायरेक्शन के इशू में अपने यहाँ से कोई लेटर या कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है वो मैं मतलब मैं उसको अभी क्लेरिफाई नहीं कर सकता, वो फिर मेरे को उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। चलिए इस केस में बताइए, मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हैं ना ये कॉल डिटेल्स आपके द्वारा फाइल हैं? हाँ मालिक, और इनमें सेवरल ट्रांजैक्शन है मतलब पर्सन, ये जो केस है थोड़ा सा कोर्ट नहीं है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है मतलब वो एज पर प्रॉपर है और इनका पर आप कहने से हो जाएगा, मैं आपको उसके बारे में इसमें डिस्प्यूट नहीं है, ये मतलब ये मतलब एक्चुअल में मतलब ये ट्रू कॉलर से निकाल गए कॉल डिटेल है, इन्होंने कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन ये ना तो कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्होंने प्राप्त किए, इन्होंने कैसे प्राप्त किए इसको सरप्राइजिंगली, अरे कॉल डिटेल हमने ट्रू कॉलर से नहीं निकाले, 91 में आपने फाइल किया है, मतलब ये हमने फाइल किए हैं, फिर वही मतलब एक बार बोल रहे हैं कि ट्रू कॉलर से प्राप्त किए गए, मतलब इन्होंने ट्रू कॉलर पे उसको शुरू से बोलते आ रहे हैं 91 में आपने फाइल किया है इसको, मतलब मैंने ऑर्डर लगाया है, इसका फैक्चुअल तो देख लीजिए क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो क्लियर क्या करेंगे, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं आप,
जब ये बोल रहे हैं 91 में, याद बोल दिया 91 में हमने कोई सप्लाई नहीं किया है इनको मतलब जो document। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में जिस कॉल डिटेल के इशू में मांगा वो हमने कोर्ट को फाइल कर दिया मतलब। अब फाइल करने के बाद पर्याप्त है क्या डिटेल्स फाइल करना? नहीं मतलब पर्याप्त नहीं, उस पे इन्वेस्टिगेशन का जो इशू है हाँ। तो जिन लोगों को सस्पेक्टेड बता रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जो कॉल डिटेल बता रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें एक्यूज है मतलब। उससे क्या होता और मतलब उन्हें है? एक्यूज बना देना पर्याप्त है? अगर नहीं उसके मतलब जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन एविडेंस, मतलब जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है ना, वो कॉल डिटेल भी जिनके प्रेजेंस किए हैं वो भी इन्हीं के बीच की हैं, जिस नंबर के हमने सीज करके पेश किए। देखिए सेशन स्टाइल के कुछ थ्योरी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुलजिम बना दीजिए वो नहीं, जो उसके संबंध में connecting कनेक्टिंग evidence है उसको अलग रख दीजिए। मतलब कनेक्टिंग एविडेंस आल्सो बीन कलेक्टेड इन दिस केस मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कनेक्टिंग आपने एविडेंस। क्या इन्वेस्टिगेशन किया है बता दीजिए। आप तो इररिलेवेंट बातें बता रहे हैं, आप बताइए आयु कौन है? सर आईओ इसमें सर रिटायर्ड हो गए सर। एक आईओ जो थे पहले, आपने स्टडी किया है केस का? मैंने थोड़ा सा स्टडी किया सर। थोड़ा सा क्यों किया? आप जब आपको बुलाया गया था तो सर ये प्रकरण जो था सर ये ब्लाइंड मर्डर था। हाँ बिल्कुल। और ब्लाइंड मर्डर के दौरान सर पुलिस ने इसमें अनुसंधान किया सर। तो इसमें जो आरोपी पाए गए व्रतिका, मनीष, जैसा आपने माननीय साहब ने बोला, तो इनके सीडीआर भी निकाले गए सर। और इसमें धाराएं बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश किया है सर। अभी ये साक्ष्य पर चल रहा है प्रकरण। नहीं तो साक्ष्य में जब तक ये डॉक्यूमेंट आपने फाइल नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या ये फाइल नहीं करेंगे कैसे होगा ये? तो ये डॉक्यूमेंट्स के और इसके आधार पर भी और मेमो के आधार पर ये आरोपी बनाए गए हैं सर। तो इसमें दिसंबर में जो प्रारंभिक विवेचक थे आलोक मिठास, वो भी अपीयर हो चुके हैं सर माननीय। अपीयर जब हुए हों तो आज तो सुनी जा रही केस, तो ये जो सीडीआर आपने कलेक्ट किया है और ट्रायल कोर्ट में पेश किया है 91 के एप्लीकेशन में, आपने खुद फाइल नहीं किया, उस पर क्या हुआ? उस पर क्या विवेचना है आपका? वो 91 के जो सीडीआर निकली थी सर, उसी के आधार पर ये आरोपी आगे बना के और इनको प्रस्तुत किया। आरोपी तो पहले ही बन चुके थे। मतलब इसमें जो सीडीआर है ना, मतलब इसमें आपको चार्जशीट फाइल किया आप? हाँ चार्जशीट में मतलब हमने सीडीआर लगाया था, आपको बता दें। ये थोड़ा सा 160 आप हमको बताइए वो फाइनल जो चार्जशीट है इसका। ये मैं आपको बता देता हूँ मतलब इसके रिलेवेंट में ये चार्जशीट कब फाइल हुआ? मतलब चार्जशीट फाइल हुआ मतलब 19/1/22 को सर। 22 आपको कोर्ट में कब प्रोड्यूस किए ये 91 के लाइट में? ये मतलब पेश किया है 22/12/22 के ऑर्डर के बाद पेश हुए 16 जनवरी 2023 में। इट्स रिकॉर्डेड इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल कोर्ट 16/1/23। हाँ अभी ये बताइए, आप बोल रहे सब विवेचना की जा चुकी है। जब 19/1/22 को चालान पेश हो गया और 16/1/23 को सीडीआर पेश हो रहे हैं, कहाँ विवेचना हुआ उस पर? क्या डॉक्यूमेंट पेश कर देने से सिर्फ पर्याप्त है उसमें? नहीं, उसमें मतलब कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया। मैं थोड़ा सा नहीं कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, क्या ऑब्जर्व करेगा? कोई अरे उस पर आपको संबंधित कंपनी से मंगाना पड़ेगा, कौन इसका होल्डर है, मोबाइल होल्डर कौन है, कितने कितने बीच बात हुए, ये सब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे हैं आप, इनका भेजे नहीं होंगे, कहाँ विवेचना है? मतलब मैं ये जो है जजमेंट थोड़ा सा आप देखें, उसका पेरा नंबर इस पे 11 से देखें आप। संबंधित आरक्षी केंद्र की ओर से प्रतिवेदित किया गया है कि कॉल डिटेल प्रस्तुत की जा चुकी है। मतलब जितेंद्र और इनके बीच में सब्सिक्वेंटली जिनको ये बता रहे हैं, ये इन्हीं के बीच की पेश की है। नहीं जितेंद्र और अर्जुन के बीच में हाँ वो भी पेश की है। वो कहाँ है? इसकी जितेंद्र अर्जुन के बीच में आपने 91 के अलावा कहाँ पेश किया है? ये 4 नंबर के बीच में सर। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा एक बार इसको देखेंगे तो जिस नंबरों के बीच में इनके बीच में जितेंद्र और उसकी बात हुई है वो तो सारे पेश किए। ये मतलब मनीष शर्मा और जितेंद्र के बीच की पेश की है। सिर्फ इसका बताइए जितेंद्र और अर्जुन का, बस दो का, एक का ही है ना? मतलब 4 है मतलब सीरियल नंबर 1 नहीं, आपने 2 लिस्ट पेश किया है जी मतलब इसके सीरियल नंबर 1 2 3 और 5 पे सेकंड कॉलम में जितने नंबर आ रहे अंकित का है, अंकित जी मतलब अर्जुन और अंकित, इनके 4 ऐसे नंबर हैं जिन पे 162 बार कॉल जा रहे हैं और उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। नंबर सेम है, अलग अलग है एक पर्सन के, मतलब अर्जुन के नंबर सेम है, सभी नंबर सेम है, मतलब 1 और 4 सेम है, बाकी सारे अलग है। 1 और 4 जी महाराज। हाँ तो इसके सीडीआर कहाँ आपने भेजा है बताइए? आपने जो जब्त किया सीडीआर वो तो भेजा है, मतलब
लेकिन ये सीडीआर जो 91 में मंगाए गए हैं, क्या रिलेवेंट नहीं थे ये? माइलर्ड वो उसी के विषय में कोर्ट ने फाइंडिंग भी दिया, मैं वही आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि जो कनेक्ट है वो बिल जुड़ चुका है और इन्हीं सीडीआर के कनेक्शन से माइलर्ड, क्योंकि ब्रूटल मर्डर था, सस्पेक्टेड मर्डर था, इनको हमने आरोपी बनाया है। तो हर कोण से लेना चाहिए ना आपको, ब्रूटल मर्डर वो उसके संबंध में मतलब उसमें जो है कनेक्टिंग एविडेंस भी कलेक्ट किए, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा। हम नहीं जानते कनेक्टिंग एविडेंस क्या है, हम तो ये जानते हैं ये भी एक मटेरियल एविडेंस। मटेरियल एविडेंस अपन मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ऑलरेडी सीडीआर जो है दोनों जो उनके बीच में कनेक्टिंग एक्यूज के बीच में, को एक्यूज और एक्यूज के बीच में, वो हमने ऑलरेडी कलेक्ट किए। ये क्या नहीं थे रिलेवेंट जो ये बता रहे हैं? उसी के विषय में पेश करने के बाद कोर्ट ने फाइंडिंग दी, मैं आपको थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। ये है ना पेरा नंबर, आप यहाँ से थोड़ा सा देखें शिवा, क्या पढ़ रहे हैं? पेरा नंबर 11, जजमेंट नंबर 26 में, पेज नंबर 26, एमसीआरसी के पेज नंबर 26। उसके बाद ही शिवान वहां पेश करने के बाद उसमें हाँ, संबंधित आरक्षी केंद्र के पेरा नंबर 11। हाँ पेरा नंबर प्रतिवेदन किया गया, कॉल डिटेल प्रस्तुत की जा चुकी तथा आरोपी सीडीआर के संबंधी जानकारी प्राप्त की, किंतु अन्य संदिग्ध व्यक्ति संलिप्तता नहीं पाई गई। मतलब ये उन्हीं के बीच में जो ऑलरेडी इसमें आरोपी संलिप्तता नहीं पाई गई है। अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोजन प्रस्तुत हो चुका, फरियादी द्वारा किसी प्रकार की नई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, क्योंकि ये कॉल डिटेल के आधार पर, कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी बना चुके, कॉल डिटेल इनके लिए भी चुके। प्रस्तुत किसी प्रकार की कोई नई साक्ष्य पेश नहीं की गई। इस परिस्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। अभियोजन के परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोजन प्रस्तुत किया जा चुका है। जहां तक न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील सो एंड सो ऑन का प्रश्न है वाला मामला फरियादी के पक्ष द्वारा अनुसंधान किया जाए, अन्य एजेंसी द्वारा कराए जाने का नहीं। वही मैं महिला आपको मैं बता रहा था कि ये जो जजमेंट पेश कर रहे हैं इसका मैं आपको रिलेवेंट भी पेरा अभी आपको भी फाइन डेटेड मतलब अनुसंधान किए जाने की एजेंसी कराए जाने का निवेदन है। यहाँ ऐसी कोई परिस्थितियां हस्तगत मामले में नहीं है कि इस न्यायालय की राय में इस प्रकार का कोई सारवान परिस्थिति सामने आ रही है जिससे पुनः अनुसंधान का पूरक अभियोजन पत्र प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया जा सके। एंड रिलेवेंट ऑफ दी जजमेंट पार्ट पेरा नंबर 26 इट इज आल्सो बीन मलट कहा इनका मलट जो ट्रायल कोर्ट में पेश किए मलट पेज 28 से स्टार्ट करें। जो समराइज चार्ट मैंने बनाया है उसका डिटेल्ड फॉर्म इस एप्लीकेशन में है माय लॉर्ड। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करके सप्लीमेंट्री चालान पेश करने का रिक्वेस्ट है और ट्रायल कोर्ट विचार कर रहा है किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का। मेरी प्रेयर ही नहीं है ये। ऐसा प्रेयर ही नहीं। आई डोंट हैव दिस प्रेयर बिफोर द लर्नेड ट्रायल कोर्ट और बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। किसी अन्य ऐसे एजेंसी द्वारा कराए जाने का निवेदन है। ये तो ऑब्जर्वेशन प्राइमा फेसी गलत दिख रहा है। मतलब जिस केस पे हमने रिलाई किया था ट्रायल कोर्ट के आगे और अभी भी कर रहे हैं, उस केस में ये दोनों प्रेयर की गई थी कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी जाए और री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने की प्रेयर को सेट असाइड किया, नहीं दी, किंतु महाराष्ट्र पुलिस को डायरेक्ट किया कि री इन्वेस्टिगेट करें कि ये मिनिस्टर साहब का नाम क्यों नहीं आ रहा है। हाँ बताइए क्या बता रहे थे आप? मलट अब ये इसका पेरा नंबर 26 से देखें जी जजमेंट को रिलाई कर रहे हैं आनंद कार्मो से अपेक्स कोर्ट वाला yes, धारा 26 in the further submitted therefore the pair of application to transfer the investigation to CI concern the observation he has been the court is concerned decides and transfer to investigation it CBI done only transfer release on the case reliance upon the deceased and this court is Himanshu Kumar versus State of Chhattisgarh. It is submitted the observation he is in his court the state of WB in committee further the protection of determination of the right the power of transfer the investigation such been democratic rights। अब मतलब यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और इसका थोड़ा सा आप रिलेवेंट 28 देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा मतलब कि इन्वेस्टिगेशन में कहाँ जो मतलब फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई थी तो उस इन्वेस्टिगेशन में पासपोर्ट के इश्यू को एराइज किया था। सेम मतलब जो इन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट को रिलाई किया वो भी प्रीजुडियस है, लेकिन वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। नो फर्दर द चार्ट इज फाइल्ड द एफिडेविट द स्टेट वेयर दिस कहाँ पढ़ रहे हैं? 28 now so for the chart further the affidavit of the state whether if the state is mentioned so few case of the registration against the accused of 13 concerns admitted the state government मतलब यहाँ कोई accused छूटा नहीं। इनका ऐसा कहना था कि 13 जो है उसमें सबमिट छूटना एक अलग चीज है तो मतलब उसमें और एविडेंस का प्रॉपरली कलेक्शन नहीं होना एक अलग बात है।
तो मतलब यहाँ पे मैटर एक्यूज को छोड़ने का नहीं है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में अगेंस्ट मैटर जो कलेक्ट किए हैं उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दूसरा उन्होंने सीबीआई की डिमांड ही इस बात के लिए की थी कि उस मिनिस्टर को आरोपी क्यों नहीं बनाया, वो अलग मांग है ना। और यहाँ ये इशू है ही नहीं, यहाँ जिन इशू है जितने भी सस्पेक्टेड हैं वो सब कनेक्टिंग एविडेंस के आधार पर ब्रूटल मर्डर तो सारे ही आरोपी हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या सिर्फ एक्यूज जोड़ने के लिए होता है? नहीं मतलब वो इशू नहीं, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर वेयर देन एनीथिंग अराइज ऑफ दिस क्वेश्चन मतलब इंटायर द इन्वेस्टिगेशन, तो वो तो इशू है नहीं। जो 5 लोगों को आरोपी बनाया है कनेक्टिंग एविडेंस कोई इशू नहीं है, सही है, वो सारे के सारे आरोपी हैं, उसमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो शायद आरोपी बढ़ जाए, वी डोंट नो ये 4 नंबर किसके हैं। चारों नंबर पे इन्हीं के जो एप्लीकेशन आप पहले कह रहे थे कि कॉलर पे रिलाय नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं आप का कनेक्शन बता रही हैं। ये कोई नया तफ्तीश करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सवाल उठाना, तफ्तीश करना जनाब का काम है। इन्होंने ठीक से की होती तो आज मैं इस एप्लीकेशन को लेके नहीं आता। इट्स बीन मालस 3 years, my brother has been brutally murdered, I am running pillar to post। मालस कहाँ जाएं हम? मतलब in that the issue मतलब and मतलब supportive the evidence also been recorded, the 6 evidence also been before this trial court मतलब वहां पे भी 6 evidence हो चुका है, वो सपोर्ट कर चुका है हमारी स्टोरी, उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बता देंगे। मतलब आई एम सरप्राइज्ड स्टेट इतना अपोजिशन क्यों कर रहा है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब नो एनी रिक्वायर्ड ऑफ दिस मतलब ये एविडेंस नहीं है आपके नजरिए से? नहीं एविडेंस मतलब देयरफॉर द कनेक्टिंग एविडेंस आल्सो बीन प्रेजेंट बिफोर दिस मतलब 2 एक्यूज कनेक्टिंग एविडेंस इनके बीच में मतलब ये पेश कर रहे हैं 162 काल की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कनेक्टिंग एविडेंस है मनीष और उसके बीच की हमने कॉल डिटेल इसमें पेश किया, उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया है। 5 पेश कर दिया, 15 छोड़ दिया। नहीं छोड़ा मतलब छोड़ने का इशू जब आता है जब कोई नया फर्दर आता है, ये उनके बीच में कनेक्शन नहीं होता। आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमको लगता है स्टेट समझ नहीं पा रही है इस मटेरियल एविडेंस को, समझ नहीं पा रही स्टेट कि क्या इसका रिलेवेंसी है। सिर्फ एक शॉर्ट सबमिशन है आपकी अपना टेकिंग। आप किसके लिए हैं? सर मैं हूँ एक्यूज अंकित के लिए रिस्पोंडेंट हूँ सर। इसमें आप देखेंगे, आप इनकी 91 की एप्लीकेशन देख लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। एक पार्टी है क्या इसमें? जी हाँ ऑलरेडी तो पार्टी है। आप इनकी पिटीशन में 91 की एप्लीकेशन देख लें, क्योंकि ये इस मैटर्स में फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाली परिस्थितियां नहीं है। जो आपकी डिजायर थी और जिस बिंदुओं पे आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी पुलिस ने की है और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर बताइए सर। इनकी पेज नंबर 41 पे एप्लीकेशन देखें 91 की। अब ये जो आप देखेंगे लास्ट लाइन पहले पेज के, अनुसंधान के दौरान अभियुक्त के मोबाइल सिम आदि जब्त किए गए तथा अभियुक्त के मोबाइल से आपसी चर्चा होने वाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य अनुसंधान के दौरान आवेदक को प्राप्त होने की जानकारी अनुसार कॉल डिटेल के रूप में एकत्रित की गई। और ये जो अनुसंधान के दौरान जो मौके से जब्त की थी, जिनका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, वो पेश नहीं की। आपका ग्रीवेंस 91 की एप्लीकेशन ये था कि आपने पेश कर ली और उसको आपने जो जब्त किया उसको पेश नहीं किया। अब सर इसकी लाइट में वो ऑर्डर देखें जो ऑर्डर 91 की एप्लीकेशन पर फाइल हुआ। कहाँ है? मतलब IA नंबर 5003 of 24, रेलेवेंट पेज 5। रात में जादू में एक सेकंड पूरी डिस्टर्ब अभिलेख का अवलोकन किया गया। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार FSL सागर की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो प्रकरण में संलग्न है तथा फरियादी आवेदक राहुल की ओर से प्रस्तुत CDR व धारा 65B के साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज आदि मामले में संलग्न होना बताए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मोबाइल का डाटा रिकवर कर उनकी रिपोर्ट हेतु साइबर मोरेंसिक लैब भोपाल प्रेषित किए गए, जहां से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु प्रतिवेदन के साथ संलग्न विभिन्न कॉल डिटेल के प्रतिवेदन धारा 65B के साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के बाबत प्रस्तुत प्रतिवेदन में ऐसा उल्लेख नहीं है कि उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है अथवा नहीं। अतः मूलतः वापस का थाना प्रभारी को निश्चित किया जाता है कि आगामी पेशे पर केस डायरी सहित कॉल डिटेल प्रतिवेदन तथा 65B के साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र बाबत प्रतिवेदन सहित स्पष्ट करे। और इन परिस्थितियों में पुलिस प्रतिवेदन के साथ प्राप्त कॉल डिटेल के दस्तावेज अभिलेख पर लिए जाते हैं और संबंधित आरक्षी केंद्र को निर्देशित किया जाता है कि साइबर फोरेंसिक लैब भोपाल से आर्टिकल प्रतिवेदन जैसे ही प्राप्त हो अविलंब प्रस्तुत करें। तो आपने जिन CDR के संबंध में इन्वेस्टिगेशन की मांग की है बाद में फर्दर एप्लीकेशन, वो ऑलरेडी कलेक्ट हुई,
नहीं मालूम। एक मिनट सर, आप ये सेक्शन 91 का ऑर्डर है, उसके बाद मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं, की एप्लीकेशन लगा। मान लेते हैं ना, मान लेते हैं 91 में आया जी, क्या इन कॉल डिटेल्स के बारे में 65 के प्रमाण पत्र हैं? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि वो कॉल डिटेल एकत्रित कर ली पुलिस ने और एकत्रित करने के बाद उनको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। हाल दो थाना प्रभारी, अरे आप बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं ना, आयु नहीं बोल रहा है इस बात। नहीं ये इसी में आया ना कि ये सारे लेब वहां से रिपोर्ट आना चाहिए। सही है, ऑर्डर की बात बता रहा हूँ मैं। हम वही जानना चाहते हैं जो ये 91 के डॉक्यूमेंट के साथ पेश किए, नहीं डॉक्यूमेंट पेश किए, क्या उनके अदर फॉर्मेलिटीज पूरे हुए कि नहीं? ये 65B के प्रमाण पत्र और लेबोरेटरी के जांच भेजे गए कि नहीं भेजे गए? अगर भेजे गए तो कंप्लीट। आप नहीं, वो तो है ना सर, भेजे गए, इसमें ऑर्डर में है सर। कहाँ? ऑर्डर नहीं, फिर से पढ़ देता हूँ। नहीं ये हमको लगता है तब तक के लिए हैं जो चार्जशीट के साथ। नहीं चार्जशीट तो फेल हो गई, उसके पहले हो गई। वही बता दीजिए, अगर इतना हो गया तो चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद में मैं इन कॉल डिटेल के संबंध में पहले पुलिस से जानकारी। भाइयों क्यों चुप हैं, वही तो समझ नहीं आ रहा है। ये क्या करके आए हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। ये 22 आपने केवल कोर्ट में बुलाया था, कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि आ गई। अब सर कॉल डिटेल, कोर्ट क्या शकल देखने को बुलाता है? नहीं कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट ने पाया कि कॉल डिटेल, उनको निर्देशित कर दिया कि आप पेश कर दें। मतलब इसमें एक्चुअल में समस्या ये है कि जो अनुसंधान करता है मोटवानी साहब वो रिटायर हो चुके हैं। नहीं, ये स्टडी करके आना चाहिए ना इनको मटेरियल। या तो फिर मतलब हम मोटवानी साहब को रिटायर है उनको नोटिस जारी करके उन्हीं को बुलवाते हैं। हमको सिर्फ जानना है कि जो 91 में पेश हुए क्या फर्दर जांच के लिए भेजे गए, 65B के प्रमाण पत्र है कि नहीं उनके साथ। ये सब फॉर्मेलिटी नहीं रहेगा तो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगा। केवल सवाल ये कि कोर्ट में पेश होना है, वो डॉक्यूमेंट पेश हो जाएंगे तो वो उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उनके अनुसार हो गई है और पेश होना है, केवल रिकॉर्ड पे आना है। अब री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फाइलिंग नहीं हुई होगी। तो अब वो स्थितियां वहां नहीं है, क्योंकि ऑर्डर से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो बराबर उनको लिया, उनकी सारी सीडीआर करके भेज दिया। केवल 65B का प्रमाण पत्र। दो पार्ट है इसमें, कुछ सीडीआर पहले आ गए थे उनको तो भेजा गया है, उसके लिए तो 91 की जो एप्लीकेशन मंगाया गया उसको क्या भेजा गया? ये 91 की एप्लीकेशन तो इनके लिए लगी है, जो सीडीआर के साथ, जो चार्जशीट के साथ फाइल कहाँ है? एप्लीकेशन देखिए किस टाइम लगा होगा जो भेजा गया होगा जांच के लिए। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो लगी है लॉर्डशिप, ये एप्लीकेशन देखिए 2 मिनट पहले तो आपकी एप्लीकेशन चार्जशीट के बाद लगी कि आपने ये चार्जशीट के साथ पेश नहीं करे और उनके संबंध में ऑर्डर है वो। बस मेरा केस पूरा यही है। मैं हम वही जानना चाहते हैं, अगर आपकी बात सही है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, इनकी बात सही है तो जरूरी है। और आपका ये कहना था कि आपने वो कलेक्ट तो कर लिया लेकिन चार्जशीट के साथ पेश। दिक्कत आ रही है, आयु ट्रांसफर हो चुके हैं, नहीं रिटायर हो चुके हैं, ये स्टडी करके आए नहीं है उस पॉइंट पर। और उसके लिए तो ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर है कि आप पेश कर दो, करना ही है इनको पेश, क्योंकि वो 91 में ऑर्डर नहीं, वो तो पेश कर चुके हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, पेश कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो वही भेजे जा चुके नहीं लेबोरेटरी में। सर वो 91 की एप्लीकेशन का जो ऑर्डर है उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि आपने उनका अवेटेड है। अब वो पेश हुए कि नहीं, वो एक क्लैरिटी बताएं कि अवेटेड है, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है और 65B के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। क्या किस पद पर आएगी? बट ये अभी जो है सीपी है, एसीपी कहाँ के? एसीपी हीरानगर। कहाँ? हीरानगर। ये कहाँ पड़ता है? ये इंदौर में ही है। इंदौर में ही। एसीपी राधानगर, हीरानगर इंदौर। क्या नाम है? धैर्यशील योगने। और ये क्या है? सर मेरे साथ है, उप निरीक्षक है सर। इनका कोई नहीं, इज प्रेजेंट इन पर्सन, ये सब भेजे हैं। he placed time to consult वो मैंने the case diary, ये चालान के समय because concerning चालान के समय किया गया पहले investigation officer has been superintended, 1 week time is granted। ये भेजे हैं, ये पहले भेजी 5000 और कब लगा दें, कब आप बता देंगे पूरी चीज स्टडी करके? ये सब जो बातें हुई अभी पूरा कंफर्म करके सेकंड सीडीआर या कॉल डिटेल जो कॉल किए गए हैं 91 के एप्लीकेशन लाइट जो पेश हुए हैं उनका क्या जांच कराने के लिए भेजा गया है कि नहीं? 65 के प्रमाण पत्र एनेक्स्ड है कि नहीं उनके साथ? अदर फॉर्मेलिटी जो भी है वो किए गए हैं, ये आप देख लीजिए। इसको आप 2 वीक्स लगा दीजिए।